animations, Photoshops, Paint. These are the following जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस जो स्पेशल ही पर्पस के कारण यूज किया जा सके, राइट? जैसे रेलवे रिजर्वेशन, bus booking reservation. So many apps are there. Okay, make my show app. These are the especially for specific purpose of software. Attendance system, billing system, report card generator. That is the different types of software you can generate and specific purposes software. Examples. So I hope you understand software and these categories. Now come to the next point. The next point is chapter characteristics of a computer. So basically characteristics, there are so many characteristics. The first is speed. Students, कोई भी डेटा हो, अगर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम में या फिर उसके कॉपी करके सेंड आउट करना चाहते हैं मेल के द्वारा, मेल के थ्रू, सो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड कैसा है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी कैसा है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस में क्या है, कैसे ब्रेक कर रहा है, कितने घंटे तक काम कर रहा है, इट मीन्स इंटेलिजेंस. वर्सैटिलिटी, उसका कॉम्प्लेक्स, अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोग्राम रन करने का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी वर्सैटिलिटी कितनी है. नेक्स्ट, पावर ऑफ रिमेंबरिंग. स्टूडेंट्स, पावर ऑफ रिमेंबरिंग एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं करता स्टूडेंट्स. तो वन बाय वन आई विल डिस्कस हियर. स्पीड, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क वेरी फास्ट. ओके, बहुत फास्ट वर्क करता है और मल्टीपल प्रोग्राम्स को जल्दी जनरेट कर देता है, फास्टर एग्जीक्यूट करता है. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंस कंप्यूटर इज प्रोग्राम, सो वट एवर इनपुट वी गिव इट गिव्स रिजल्ट विद एक्यूरेसी. एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट आंसर आपके स्क्रीन पर शो होगा, एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा. इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक. कई घंटों तो काम कर सकता है बिना किसी ब्रेक के, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन. Versatility, we can use computer to perform completely different types of work at the same time. Multiple tasks, multiple work, listen music, typing the matter, print out, online chatting, multiple tasks perform at the same time. That is the point of versatility. The next is power of remembering, friends. Power of remembering, every piece, every data of information, every information of a user is stored in the computer that can be retrieved as long as you need. जब इच्छा करे उसको उसको यूज कर सकता है, सेंड कर सकता है, फैच कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है. सो नो फीलिंग, कंप्यूटर आर डिवोटेड ऑफ इमोशंस. नो इमोशन, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता स्टूडेंट्स, कोई फीलिंग नहीं होती, मशीन है. ओके, these are the following characteristics. Now come to these points. Students, after input the data, CPU generate करता है, प्रोसेसिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम. These are the following points. After input, CPU process it and give the output. So input, CPU and output. These are the following block diagram of computer. Block diagram. CPU के अंदर तीन पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स. There are three parts: computer control unit, arithmetic logical unit and memory unit. So one by one I will discuss here. Central processing unit. Students, CU, control unit, arithmetic logical unit. Clear here? CU, computer resources are managed from control units and the logical hub of the computer. Okay, whatever give the data via user, CPU first to control all the task, like user open three files at the same time, listen the music, typing the data and internet, working in internet, chatting, online chatting. So CPU control all the programs, CU. And second one is ALU, arithmetic logical units. Arithmetic logical unit perform the operation like addition, subtraction, multiplication and divisions. These are the following points, students. So simply we can say that students, कि whatever data is stored in the computer, that is stored into the ALU first, and after that he decided the addition, perform the operation addition, subtraction, multiplication and division and calculation basically. So the work of ALU is calculate the data. Okay, so second definition is when the control unit encounters an instructions जो दिए गए निर्देश दे रहा है जो यूजर,
दैट कैन इन्वॉल्व अर्थमेटिक, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं अर्थमेटिक और लॉजिक से। सो एएलयू उसको परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, और वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट सीपीयू के तीन पार्ट इंटरनली एक्सप्लेन किए थे। द फर्स्ट इज सीयू, सेकंड इज एएलयू एंड द थर्ड इज मेमोरी यूनिट। सो आई विल डिस्क्राइब हियर मेमोरी। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। बेसिकली कंप्यूटर जो भी डेटा देता है, वट एवर डेटा वी स्टोर इन कंप्यूटर, सो इन मेमोरी में स्टोर रहता है, बिकॉज सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो memory unit divided into two parts. The first is primary memory and second is secondary memory, students. Okay, come to the next point. Memory unit. Memory unit is the amount of data, जो भी डेटा है वो सारा मेमोरी यूनिट में शो होता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। दैट कैन स्टोर भी स्टोरेज यूनिट, उसके एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें मेमोरी पाई जाएगी। और मेमोरी के साथ साथ ये दो चीज़ें हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जा सकता है, एंड सेकेंडरी इज परमानेंट। ओके स्टूडेंट्स, परमानेंट। अब इसको परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं? बेसिकली primary memory divided into two parts, RAM and ROM strings, and secondary memory divided into the many parts like floppy disk, hard disk, CD, DVD, pen drive, etc. Okay, so the work of primary and secondary I will clear in next slide. Student, look at here. Primary memory. Primary memory is the memory that is directly accessed by CPU. It means CPU direct access करता है इसको, प्राइमरी मेमोरी को। जो भी डेटा होता है, मान लीजिए आपने सिस्टम में कोई फाइल ओपन किया, सो रैम बेसिकली क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी एक्सेस बाय सीपीयू, टेम्पररी सीपीयू में जो फाइल डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव में है जिसको सिस्टम में यूजर यूज करना चाह रहा है वटेवर, तो रैम बेसिकली उसको ड्राइव से लाने का और आपकी स्क्रीन पर शो कराने का वर्क करेगा। इट मीन्स कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, डेटा की फाइल पर राइट क्लिक करके जो भी ऑप्शंस हैं, समझ लीजिए वट एवर ऑप्शंस विल बी डिस्प्ले आफ्टर राइट क्लिक ऑन एनी फोल्डर, एनी selected file, that is the all the functions has been done by RAM. ओके, कट करना, कॉपी करना, उसको मेमोरी में जब वो तब तक वर्क करता है स्टूडेंट्स जब तक वो डेटा कंप्लीट वर्क करके, कट करके, पेस्ट करके या डिलीट करके या रीनेम करके उसको कंप्लीट ना हो जाए। दैट इज रैम में ही अपने स्टोर रहता है डेटा, दैट इज वर्क ऑफ रैम। रोम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी को रीड, मेमोरी का जो डेटा होता है उसको रीड कराता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है ओनली रीड कराने में, नॉट एडिटिंग। इट मीन्स कि इसमें जो डेटा है वो जो डेटा स्टोर रहेगा और आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ना, डिस्प्ले करना है ना, दैट इज वर्क ऑफ डिस्प्ले द। वी कैन नॉट एडिटिंग, वी कैन नॉट चेंज द डेटा, but we can change the data with the help of RAM. Okay, now the next, it is known as main memory। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइस, इट इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय सीपीयू। आफ्टर सीपीयू generate the program, we can store the data, we can show the data, we can store this data in multiple drive, multiple disk. Okay, just like hard disk, CD, DVD, pen drive, so many devices are there. So secondary memory is the storage device that is not accessible directly by CPU, we can store the data permanently. Okay, second, it is also as a backup memory। सपोज दैट प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और परमानेंट को परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। डेटा सिस्टम ऑफ हुआ, डेटा बंद। इट मीन्स रैम और रोम टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी में डेटा ऑलरेडी शेयर है जो अब स्टोर किया हुआ है। इट मीन्स कि हमने जो स्टोर किया हुआ है डेटा वो हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या सीडी में तो है,
चाहे स्विच ऑफ हो जाए या लाइट्स ऑफ हो जाए, बट स्टिल प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम का वर्क इतना है स्टूडेंट्स कि जब तक डेटा कॉपी पेस्ट कट एडिट स्क्रीन पर शो हो रहा है, मतलब यूजर वर्क कर रहा है, तब तक रैम एंड रोम वर्क कर रहे हैं. आफ्टर शट डाउन द सिस्टम, रैम एंड रोम वर्क हैज बीन क्लोज्ड. ओके, तो इसी वजह से इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है. डेटा का टेम्परेरी टाइम तक वर्क कराना रैम और रोम का काम है. ओके, परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ, केवल टेम्परेरी वर्क टाइम तक, जब तक यूजर उसको यूज कर रहा है, गेम खेल रहा है, गाने सुन रहा है, वट एवर. एंड सेकेंडरी मेमोरी, डेटा परमानेंटली स्टोर है. यूजर डिलीट करेगा तो डिलीट होगा, अदरवाइज वो डेटा स्टोर है, चाहे सिस्टम की टर्न ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए. So secondary memory is also known as the backup memory. इस computer can run without secondary memory. Can run without secondary memory. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर डेटा हार्ड डिस्क में है या CD DVD में है, यू कैन, अगर एक सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है, रैम रोम एक सिस्टम का बंद कर देते हैं, किसी अनदर सिस्टम में इसको इंसर्ट करते हैं, देन कंप्यूटर कैन रन विदाउट एनी सेकेंडरी मेमोरी. हम दूसरे सिस्टम में यूज करके भी हम अपना डेटा फैच कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी चाहे उसकी ऑन हो, वहाँ हमारा डेटा सेव स्टोर है. प्राइमरी मेमोरी, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. ओके, फास्टर, डेटा फास्टली वर्क करता है, कट कॉपी पेस्ट, एंड इट इज स्लोली देन प्राइमरी मेमोरी. डेटा धीरे धीरे हमारा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में. एग्जाम्पल रैम रोम in primary memory, and example CD, DVD, USB, flash drive, floppy disk. These are the following example of secondary memory. Come to the next point. RAM and ROM. Temporary storage, ROM permanent storage. Storage permanent and temporary storage. Store data in MB, store data in GB. Okay, MB में डेटा स्टोर कराएगा, ये GB में स्टोर कराएगा डेटा. That is volatile, that is non volatile. Students, use in normal operation, used for startup process of computer. जब स्टार्ट होता है तब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है कंप्यूटर में, तब ये वर्क करता है. यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन लाइक कट कॉपी पेस्ट, वो हमारा टाइम नहीं होगा. राइटिंग डेटा इज फास्टर, जो भी हम टाइप करते हैं, राइटिंग कर रहे हैं डेटा, वो फास्ट होता है. राइटिंग डेटा इज स्लोअर, यहाँ पर इसका डेटा स्लो होगा. सो दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, CD DVD, Blu-ray disk, floppy disk, zip disk, pen drive, memory card, and tape. These are the following drives, devices which we can. So this is our secondary memory. Okay. So hard is the secondary. We can store the data like 1 TB hard disk. We can store 1 TB data. CD DVD 780 MB data. You can store 1 GB 2 GB data and store. Memory chip insert in your mobile phone also. Pen drive, we can store the data into the pen drive also. Floppy disk and Blu-ray. These are the following devices in which we can store the data also. Okay, and these are the pen drives, magnetic tape, SSD, hard disk, simple disk, hard disk drive. These are the following devices. It is called the permanent memory, that is in which we store the data permanently. Okay, we can delete when user can authenticate. User चाहेगा तब delete करे, otherwise उसमें save ही है, right? These are the following example of data. I hope you understand these points also. Thank you, students. Now, students, if any queries, so just contact me personally, and I will send you a notes related to this chapter. Just do it all the question in your notebook. Either if you have registered your copy, then just write down these questions answer. Okay.